you, end organ damage, and again increase incidence of difficult intubations. ये main points हैं जो pre-op concerns हैं आपके diabetic patient में. Again repeating, optimal glycemic control is important. Gastroparesis, end organ damage में cardiac, including silent MI, renal, CVS, gastroparesis, opacity, and increased incidence of difficult intubation. ये आपके pre-op concerns में आ जाएंगे. Intraop आपने क्या manage करना है? Intraoperatively you have to optimize the blood glucose by keeping blood glucose level almost less than 180. You have to avoid hyper and hypoglycemia. You have to be vigilant about the cardiovascular instability. क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं कि ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन के बारे में, सो आपने इन तमाम चीज़ों के बारे में ड्यूरिंग सर्जरी बहुत कंसर्न अपना बताना है कि यू हैव increased incidence of cardiovascular instability during surgery in such patients. Post-operatively, obviously, you have to check the blood glucose level. So these are the main points जो आपने diabetic patient में pre-op, intra-op and post-op लेके चलना है. अब simple यानी diabetic patient को simple during surgery आपने सिर्फ उसका blood pressure ही control, simple sugar ही control नहीं करनी. You have to closely monitor the CVS status of such patients. ये patient suddenly इनकी instability आएगी. Silent MI चल रहा होगा जो worsen हो सकता है during surgery. So you have to be vigilant about this. Clear to all of you so far? Yes, sir. जी yes मैम. जी सर, अभी हम क्वेश्चन नंबर 14 तक पहुंचे, आगे कुछ थोड़े से क्वेश्चन रह गए. हाँ जी कर लें. सर आप कंटिन्यू करेंगे सर आगे, आप फ्री हैं? नहीं करते, चलें करें आप, बीच में ऐड कर देंगे कुछ चीज़ों. ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 15 इज 15 और 16 को इकट्ठे डिस्कस कर लेते हैं. व्हाट इज HbA1c एंड व्हाट इज स्टिफ जॉइंट सिंड्रोम? HbA1c is basically the glycated hemoglobin, and its synthesis depends upon the glycation due to chronic exposure to hyperglycemia. Normal values अभी हमने पहले भी डिस्कस की थी 6.5 है, और जिनका डायबिटीज कंट्रोल अच्छा नहीं होता तो दे हैव इंक्रीज वैल्यू ऑफ दिस, एंड ये रिफ्लेक्ट करती है ओवर पास्ट, सम बुक सेज 3 months, some says 6 weeks तक. And stiff joint syndrome, it is one of the complication of diabetes mellitus. Reason behind the glycosylation of the collagen tissue. It is manifested as the stiff joint, short stature, tight waxy skin. अगर ये TM joint को involve कर लेता है, temporomandibular joint को और atlanto-occipital joint को, then there is an increased risk that there you have a chance of difficult intubation during general anesthesia. Next question 17 and 18. 17 is the management of intra-op optimal blood level of the glucose. इसकी different regimes कैसे manage करना है. And the next is the hypoglycemic shock. How will you recognize it? So कोई इसको explain करना चाहे? Anybody? The management of intraoperative blood glucose level and recognition and treatment of hypoglycemic shock. सर इंट्राऑपरेटिवली ब्लड ग्लूकोज लेवल को सर इंसुलिन से ही हम वो करेंगे, कंट्रोल करेंगे. इसके लिए जो कॉमन फार्मूला है सर, 50 यूनिट्स इन 50 ml ऑफ नॉर्मल सलाइन प्रिपेयर करके इन्फ्यूजन चला सकते हैं. और सर इंट्राऑपरेटिवली हम हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग यूज नहीं कर सकते. और सर आरबीएस मॉनिटर, अगर शुगर कंट्रोल सही नहीं है तो वन ऑरली आरबीएस मॉनिटरिंग भी इसमें हम करेंगे, तो उसके साथ उसके अकॉर्डिंगली की इन्फ्यूजन रेट को एडजस्ट करेंगे. 1 यूनिट ऑफ इंसुलिन कितनी शुगर कम करती है? 1 यूनिट सर 2 mg पर डेसीलीटर. नहीं सॉरी सर, मुझे जरा कंफ्यूज हो गया मेरा.
Anybody? 1 unit of regular insulin decreases blood sugar glucose by how much? Two to three mg per deciliter. 25 to 30 milligram per deciliter. ये उसके साथ ग्लूकोज के साथ कंफ्यूज कर रहे होंगे। ये जो ग्लूकोज को न्यूट्रलाइज जी करता है ना सर। 1 यूनिट, वो 4 ग्राम को 1 यूनिट करता है। बाकी जो डिक्रीज करता है वो 25 है। 25 ही है ना? जी सर, वो उससे कंफ्यूज कर रहे हैं। 25 हाँ to 30 मिली। हाँ जी, 25 to 30। ओके सर। और जो फार्मूला डॉक्टर राफे ने बताया कि 50 ml को 50 में डाइल्यूट कर लें, वो हम कॉमनली जो रेजीम हम लोग यूज करते हैं, तो उसके जो डोज रिक्वायरमेंट है, तो जितने यूनिट पर आवर आपने चलाने हैं, तो जितना आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसको 150 से डिवाइड कर दें, इट विल गिव यू द यूनिट पर आवर ऑफ दैट इंसुलिन जो आपने 50/50 से बनाई हुई है, जो मोस्ट कॉमनली हम अपने सेटअप में फॉलो कर रहे होते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया जनरल एनेस्थीसिया में कैसे आपको शो करेगा? एनीबॉडी? पेशेंट स्वेटिंग करेगा, यस। टैकीकार्डिया हो सकता है, और हाइपोटेंशन भी हो सकती है। इतना क्लियर how साइन will you नहीं है, treat- स्पेसिफिक कोई साइन तो नहीं है। So how will you treat the hypoglycemia intraoperatively? हम सर जो 25% या 50% जो भी आपके पास डेक्सट्रोज अवेलेबल हो, अगर 50% वाली है तो वो हम देंगे उसके 25 के हम देते हैं सर 4 एम्प्यूल्स देते हैं, और 50% वाले के 2 एम्प्यूल्स सर देते हैं। अच्छा, इसमें 25% क्वेश्चन ये का एक एम्पूल देने से कितनी शुगर एक्सपेक्ट? हाँ जी सर। चलिए आपने पूछ लिया, तो वो मेरे देने में ये सवाल था जी कि सर। 4 ही क्यों जी सर। देते हैं? ठीक है, हाँ जी, ठीक है। 4 ही क्यों देते हैं? जी सर, वही मैं पूछ रहा था कि इनको क्लियर कॉन्सेप्ट है कि एक यूनिट एक एम्पूल देने से 25% में कितनी शुगर बढ़ती है? हाँ, सर रिवाइज नहीं किया हुआ, लेकिन मेरे ख्याल में पता नहीं कितनी बढ़ती है। 25 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। जी, जितने ml देंगे उतनी ही अप्रोक्सीमेटली शुगर बढ़नी चाहिए। तो हाँ, 50% के लिए है कि 50% से उसके 1 ml से डबल। 2 मिलीग्राम बढ़ती है। डबल हो जाती है। हाँ जी। सही है। तो आप देखें, तो आप जो नेक्स्ट है ना लास्ट उसका डीके का है, उस पे आप अब देखें ये जो 4 देने की जो सेंस है ना वो जी यही सर। है कि 4 से आपकी 100 ठीक। बढ़ेगी, तो हमारा जो लोअर सेफेस्ट रेंज है वो ये है कि 100 होनी चाहिए, कि जब और सर हम 100 के राउंड हाइपोग्लाइसीमिया कब अबाउट कहेंगे वो? सर हम हाइपोग्लाइसीमिया कब कहेंगे कि कितना हो शुगर? मुख्तलिफ बुक्स में मुख्तलिफ दिया हुआ है, कुछ कहते हैं 74 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम हो, कुछ कहते हैं 70 कहते हैं। कुछ जगहों पे 60 भी है। सर बिल्कुल, कुछ कहते हैं 60 सर बिल्कुल। तो उसमें कुछ क्लियर कट है क्या कहते हैं अरसलान, कहीं पढ़ा है आपने? क्योंकि बुक्स में सर कहीं मैंने पे सिर्फ एक बुक में 70 नहीं कह सर, रहे हैं। क्लियर कट 74 ऐसी नहीं है। पढ़ा नहीं है, सर, क्लियर कट मैम 73, 60 74 सर। 60 है आई थिंक, जो मेरे ज़हन में भी आ रहा है। ठीक है सर। 60 है, मुझे जो याद पड़ रहा है ना 60 है, ठीक क्योंकि है सर। 50 पे जाके ये जो है वो न्यूरॉन का डैमेज शुरू हो जाता है। बहरहाल इस पे कोई कंफर्म किसी को मिले तो बाद में ग्रुप में शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है सर। अच्छा, जी सर, आई थिंक क्लोज करें इसको, बाकी किसी ने कमेंट करना हो तो।
जी डॉक्टर असलान कंप्लीट हो गया है? जी सर, जी सर, जी सर। तो लास्ट क्वेश्चन मेरे ख्याल 19 रह गया सर, इसको भी कर लेते हैं। 19 हाँ जी, लास्ट रह गया। Same patient landed in emergency with infected wound on right foot, fever, nausea, vomiting, abdominal pain. On examination, she is semi-conscious, dehydrated, tachypneic, tachycardic. What is your diagnosis and how will you manage it? सर डायग्नोसिस तो इसका डायबिटिक कीटोएसिडोसिस और सेप्सिस है, तो मैनेजमेंट आप बता दें। जी सर, डॉक्टर तनवीर आप बता दें, अब आप कमेंट कर रहे थे तो। हाँ जी, जो लास्ट पेशेंट है बिल्कुल डॉक्टर राफिया ने सही फरमाया। श्योरली क्योंकि पेशेंट डायबिटिक है, कोमाटोज है, तो डीके हो सकता है, प्लस में क्योंकि इन्फेक्टेड है सेप्सिस भी हो सकता है, ये दोनों ही हो सकते हैं। और इसलिए हमारी जो इन्वेस्टिगेशन मैनेजमेंट होगी, तमाम हमने इनिशियली इन्वेस्टिगेशन भेजनी है और इंक्लूडिंग ब्लड कल्चर जो है वो भी भेज देने हैं, एबीजी उनकी चेक करना है। मीनवाइल फिर हमने ट्रीटमेंट शुरू कर देना है। आईवी फ्लूइड, बोलस आईवी फ्लूइड का प्लस एंटीबायोटिक, और उसके बाद जो है कंप्लीट जो मैनेजमेंट है डीके की वो हमने स्टार्ट करनी है। पेशेंट को हमने करना है सबसे पहले ऑप्टिमाइज होने के बाद जब पेशेंट बेहतर हो जाएगा उसके बाद हम सोचेंगे कि उसको सर्जरी के लिए कैसे प्रोसीड करना है। सो उसमें टेक होम यही है कि हमने ऑप्टिमाइज करना है, पेशेंट को रिससिटेट करना है और उसकी जो रूट कॉज है उसको ट्रीट करना है। उसके बाद जो है हम उसका सर्जरी प्लान करेंगे कि वो उसके लिए चॉइस ऑफ एनेस्थीसिया क्या होनी चाहिए और उसकी जो फर्दर कंसिडरेशन है उनको हम फिर ये करेंगे, देखेंगे। इसमें ऐड कर लें कोई चीजें आप? जी सर, ठीक है, अच्छा बता दिया आपने, यही कुछ ही है मोस्टली। हाँ, इसमें सर वो ये भी है ना कि अपने फ्लूइड्स कितना देना है फर्स्ट आवर में, सेकंड आवर में, फिर 2 आवर्स बाद, एंड देन नेक्स्ट 2 आवर्स बाद, देन हाँ 4 जी, आवर्स इसमें के ये है 4 कि एक रजीम तो ये है कि पहले घंटे में 30 मिनट्स, 1 liter in 30 minutes, then जी next 1 liter in 1 hour, then next 1 liter in 2 hours, then fourth liter in 2 to 4 hours. These patients are basically तकरीबन एक जगह मैंने पढ़ा 6 लीटर तक डेफिसिट होता है इनमें, 4 to 6 लीटर सर तक डेफिसिट होता है ऐसे पेशेंट्स में ना। 6 और जो लीटर का डेफिसिट है, जी सर, उसमें 3 लीटर इंट्रासेलुलर और 3 लीटर इंट्रावास्कुलर ये आपने फिल करना होता है। तो 3 लीटर आप वो देंगे जो सेलुलर लेवल की डिहाइड्रेशन को करेक्ट करेगा, और नेक्स्ट जो 3 लीटर देंगे उसको आप जो है ना वो करते हैं कि वो वास्कुलर स्पेस जो है उसको फिल करे। इसलिए जो है ना इसमें डेक्सट्रोज सोल्यूशन हम इनिशियली यूज करते हैं जिसमें वो अब्जॉर्ब हो के सेलुलर लेवल तक पहुंचता है। और जब आपका ग्लाइसीमिया लेवल 250 से नीचे आता है तो फिर हम नॉर्मल सलाइन यूज कर लेते हैं, वो वेसल को फिल करता है। तो दिस इज स्ट्रेटजी शुरू में टू, सर नॉर्मल सलाइन, हाँ जी शुरू में सर नॉर्मल पहले सलाइन नॉर्मल है, सलाइन और यूज करेंगे। हाँ जी मैं यस रिवर्स कर गया, पहले नॉर्मल सलाइन आप देते हैं 3 लीटर तक, और जो ही 250 से नीचे आता है तो फिर न्यूट्रलाइज करके आप डेक्सट्रोज देते डेक्सट्रोज पे कन्वर्ट कर देते हैं। और सर हैं। इसके अलावा बिल्कुल जब आपका यूरिन आउटपुट आना शुरू हो जाए, देन वी ऐड हाँ पोटेशियम एज वेल, एंड हाँ जी इंसुलिन भी। जब हम इंसुलिन हम उसी तरह सर पहले बोलस देंगे एंड देन इन्फ्यूजन चला देते हैं सर। बिल्कुल, पहले वेसल फिल करेंगे और फिर सेलुलर डिहाइड्रेशन को करेंगे। थैंक यू सर। सो आई थिंक ट्राई तो किया इस पूरे सिनेरियो में, डायबिटीज की ऑलमोस्ट तमाम चीजें कवर हो रही हैं। हाँ Which जी is ऑलमोस्ट ये diabetes. एनेस्थीसिया रिलेटेड जो लॉन्ग केस का पूरा पैटर्न है माशाल्लाह इस सारे आपके क्वेश्चन में वो ऑलमोस्ट टच हो गया।
ये बल्कि हमारे पास एक बड़ा अच्छा सर्वे आ गया, वो यूं समझ लें कि एक क्या कहते हैं, नेसेसिटीज मदर ऑफ इन्वेंशन वाली बात हो गई कि आज वो डॉक्टर हमाद बिजी हो गए एट लास्ट मोमेंट, तो उनकी प्रेजेंटेशन थी, नहीं हो सकी, तो ये केस सिनेरियो आ गया। तो इस पे बल्कि मैं सारे पार्टिसिपेंट से कहूंगा कि इस पे ना आप अपना फीडबैक दें कि एक हमारा वो पैटर्न था प्रेजेंटेशन का और दूसरा ये केस स्टडी आ गई, तो इसमें जरा आप अपना फीडबैक दें कि कौन सा आपको ज्यादा कन्विंसिंग लगा। मेरा तो ख्याल ये है कि ये जो पैटर्न है इसमें इंटरेक्शन बहुत ज्यादा है, इन्वॉल्वमेंट है सबकी, और वो सर एक ये ज्यादा लिसनर बेहतर है बोरिंग लिसनिंग सिचुएशन भी इसमें थोड़ी कम है। अ, तो इसमें सर। आप दें अपना फर्दर भी फीडबैक ऑन बोथ पैटर्न, प्लस और माइनसेस बताएं, फिर डिसीजन करते हैं नेक्स्ट के किस पैटर्न पे ज्यादा बेहतर है। कुछ उसमें टॉपिक ऐसे होते हैं जिसमें आपको प्रेजेंटेशन मोड यूज करना पड़ता है, तो कुछ में ये भी किया जा सकता है। तो बहरहाल आपका फीडबैक आए इस पे। जी अ, अरफान। जी सर, डॉक्टर तनवीर कुछ कहना चाह रहे हैं? जी जी डॉक्टर आमिर, तनवीर। कोई एक चीज जो होती है ना वो सूटेबल नहीं होती कि सिर्फ हम जो है ना किसी एक चीज पे स्टिक करें, ये चीजें मिक्सअप होनी चाहिए। मेरा ख्याल है हाँ लेक्चर टाइप बिल्कुल, भी होना चाहिए और इसको भी ऐड कर देना चाहिए। बिल्कुल सही। मीन जो लर्निंग है ना वो किसी एक फेज में नहीं है कि वो जी सिर्फ उसी में पॉसिबल है। ये दिस इज गुड एडिशन, इसे आप जब ऐड करते हैं इट गिव्स गुड फीलिंग, अच्छी डिस्कशन हो जाती है, बट आई थिंक दैट शुड आल्सो बी कंटिन्यूड। पे की नेचर को देख के इस पे थोड़ी सी डिसीजन मेकिंग की जा सकती है कि इस पे प्रेजेंटेशन ही हो या इसको डिस्कशन कर लिया जाए। मेरा ख्याल सर आई ये थिंक है हर टॉपिक के जो लिए हमारे, थोड़ी सी पहले प्रेजेंटेशन हो, एंड में इस तरह हाँ का एक सिनेरियो भी डिस्कस हो लाजमी। या हाँ ये भी ठीक है। अच्छा, उसमें एक और चीज हम कर सकते हैं कि जो लॉन्ग केसेस के है ना टॉपिक्स, जैसे थायराइड है, ये डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, इस्कीमिक हार्ट डिजीज है, एस्थमा है, यानी कि जो लॉन्ग केसेस बनते हैं, लॉन्ग केसेस की डिबेट को हम इस तरह से ले लें, और जो छोटे केसेस हैं, जो डे केयर एनेस्थीसिया का एक जो है ना क्वेश्चन है कुछ, उसको हम थोड़ी सी प्रेजेंटेशन में ले लें, इस तरह मिक्सअप कर लें। और साथ जो जैसे आप कह रहे हैं कि शुरू में इनिशियली प्रेजेंटेशन हो, बाद में ये एक केस सिनेरियो हो जाए, तो इसको कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। जी डॉक्टर असलान, अब फाइनल है इसमें जो जी सर, आज जी की, सर, जी सर, इसमें जस्ट फाइनल। मैं ऐड करना चाहूंगा। असल में जब मैं ये सुन रहा था, मैं ड्राइव कर रहा था साथ साथ, लेकिन मैं जी सुन जी रहा था सारा, तो बड़ी अच्छी डिस्कशन हुई है। अ, एक है इन डिटेल नॉलेज जो है ना डायबिटीज का, वो भी बड़ा जरूरी है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है कि डायबिटीज से आप बच नहीं सकते, एग्जाम एग्जैक्टली। हो चाहे या आपकी प्रैक्टिस हो। इसके बारे में अच्छी तरह नॉलेज हासिल करना बड़ा जरूरी है। दूसरा, इन प्रैक्टिकलिटी जो आप करते हैं उनमें दो तीन टिप्स हैं, वो अगर की जाए तो मेरा ख्याल है काफी हम जो एक डिफिकल्ट जो सिचुएशन है ना उससे हम बच सकते हैं। सबसे पहले ये है कि जो हम इन्वेस्टिगेशन रूटीन में हम करें, सेट ऑफ इन्वेस्टिगेशन जिसमें फुल ब्लड काउंट है, ईसीजी है और रीनल प्रोफाइल है, ये जो तमाम चीजें हैं, इसके साथ हम HbA1c जो है ना उसे हम रूटीन की इन्वेस्टिगेशन काउंट करें। उससे ये फायदा हमें हो जाएगा कि अगर पेशेंट की लेवल 10 से ऊपर आ रहा है, इट मींस कि उसका जो ग्लाइसीमिक कंट्रोल है वो बहुत पुअर है, और उसकी जो एक रीडिंग है फास्टिंग की या रैंडम की वो आपको जो है अंधेरे में रखेगी। तो उसको, इस इन्वेस्टिगेशन को रूटीन की इन्वेस्टिगेशन में ऐड कर लेना ये बहुत जरूरी है। सेकेंडली, इन द मॉर्निंग ऑफ सर्जरी फास्टिंग ब्लड शुगर जरूर होना चाहिए डायबिटिक पेशेंट का। और थर्ड चीज ये है कि इंट्रा ऑपरेटिवली ड्यूरिंग द सर्जरी उसमें आप एक शुगर की जो है ना रीडिंग वो आप जरूर कर लें, इररेस्पेक्टिव कि वो इंसुलिन पे है, ओरल हाइपोग्लाइसीमिक्स पे है, तो ये आपको कंफर्टेबल रखेगी। आपका पेशेंट अनड्यू हाइपोग्लाइसीमिया में नहीं जाएगा, एकदम हाइपरग्लाइसीमिया नहीं होगा। तो ये तीन चीजें हैं, ये करने से ये है कि आपको जो है ना ड्यूरिंग प्रैक्टिस जो है ना मुश्किल सिचुएशन आप अवॉइड कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, HbA1c लेवल, इसको रूटीन इन्वेस्टिगेशन में शामिल कर लें। सेकंड, फास्टिंग ग्लूकोज लेवल इन द मॉर्निंग ऑफ सर्जरी।
और इंट्रा ऑपरेटिवली हैव वन रीडिंग ऑफ शुगर, इसको आप कर लें। और आइडियल ये है कि एक 1 आवर आफ्टर द रिकवरी भी कर लें, तो इट विल कीप यू इन द नाइस कॉरिडोर। ये मेरी एडवाइस है। जी थैंक यू डॉक्टर तनवीर, ये बड़ी एक्सपीरियंस्ड आपकी एडवाइस है और ये एक नट शेल है डायबिटीज को मैनेज करने का। थैंक यू। जी असलान, फिर इधर एंड जी कर रहे सर, हैं। जी सर एंड कर। चलें ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम फिर हम करेंगे थायराइड को, ठीक है उसमें हाइपो हाइपरथायराइड एंडोक्राइन, ठीक है सर, तो उस पे ठीक है पेपर देख लेते हैं। थैंक यू ठीक। सर, बहुत शुक्रिया सर। ओके, Thank टेक you, केयर, Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz.